Good morning, dear students. So today we are moving to discuss about physiology of human. While discussing about physiology of human, that we know that human is multicellular organism, or you can say it is high-end organism, the organism which is right now considered as one of the ultimate point of the evolution. So here you are going to find different kind of the organ systems which are actually developed due to participation of the variety of the organs, variety of the tissues and all this. Okay, so all this particular type of the organs and entire system that you are going to learn here, all these systems are diversified based on their functions, like digestive system, nervous system, endocrine system, your muscles, and everything you are going to learn over here. We are going to start with the first system, that is digestive system. Before going into the detail of the digestion and all the terms, all the process of the digestion, first of all we have to study, we have to look into the details of food and nutrition. So what is nutrition? Nutrition is getting and utilization of energy rich nutrients, that is food, by an organism, that is called nutrition. What food actually provides? So food provides energy for life activities, materials for growth, maintenance of body temperature, and repair of tissues. All these are the functions of the food. Okay, as well as what are the food nutrients? So carbohydrates, proteins, fats, that means lipids, vitamins, minerals, and water. All these are collectively known as nutrients. Okay, and इसी को ही पूरा diet हम बोलते हैं. The water plays an important role in metabolic processes and prevents dehydration of the body. तो वाटर का मेन काम है एज अ मीडियम वो काम कर रहा है. ओके, इन ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज, एंड अदर देन दैट वी कैन नॉट फंक्शन आउट. ओके, fine. Now about digestive system. So digestive system is actually made up of two parts: alimentary canal, that is known as gut, and digestive glands, that those are actually known as associated glands. Alimentary canal में कौन कौन आएगा? तो mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. All these are the parts of the gut, alimentary canal. Digestive glands में सबसे important, सबसे पहला है, that is salivary gland, that gastric glands, liver, pancreas, intestinal glands. ये सारे के सारे जो glands हैं ये digestive glands हैं, मतलब they are supporting during the digestion of the food. इसके अलावा हम food digest नहीं कर सकते हैं. So looking into the detail of the alimentary canal, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे food की journey की from mouth and buccal cavity. Mouth क्या है? Mouth is actually meant to receive the food. इंजेक्शन के लिए माउथ का काम है. बकल कैविटी क्या है? इट इज कैविटी ऑफ माउथ, और जिसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी. व्हाट एक्चुअली इट इज कंसिस्ट ऑफ? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पैलेट, दैट इज द रूफ, दिस वन, टिथ एंड मस्कुलर टंग. Palate has anterior hard palate, this one, hard palate, and posterior soft palate, this one is the soft palate. Tongue is a muscular organ which is attached to the floor of oral cavity by frenulum. Okay, तो through frenulum, this is the frenulum. ये आप सभी को दिखता होगा जब आप टंग ऊपर करते हैं तब frenulum हमें दिखता है. Tongue has small projections called papillae. Some papillae bear टेस्ट बर्ड्स. तो टंग जो है हमारा, उसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस हमें देखने मिलते हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं सारे के सारे, ओके, इसको बोला जाता है पैपिली. और ये जो पैपिली है
उसमें कुछ पेपिले ऐसे डिफरेंशिएटेड है which actually bear taste buds, मतलब अलग अलग तरह के टेस्ट जो हमें फील हो रहा है, that is the function of the papillae. At the back or either side of the tongue tonsils are present. Okay, तो tonsils भी है यहाँ पे. Okay, you can see this are palatine tonsils. Okay, तो बैक साइड पे on both of the sides of the tongue tonsils are present, right? और उनका भी एक important रोल है in the digestion of the food. ओके, मतलब हमारे फूड की जो जर्नी है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है. ओके, फ्रॉम द माउथ एंड बकल कैविटी. ओके, और डाइजेशन की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए दोनों तरह के प्रोविजंस हमारे पास हैं. डियर स्टूडेंट, डाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तब एक बात समझिए, डाइजेशन दो तरह से पॉसिबल है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है उसमें सिर्फ हम फूड को जो है आउटसाइड द सेल डाइजेस्ट कर रहे हैं, और बाद में इंट्रा सेलुलर में वो जो फूड है which is now converted into the simple molecules, okay, like glucose and amino acids and all this, it is going to be absorbed by the cell, और सेल बाद में उसका डाइजेशन कंप्लीट करता है. Now one of the most important part, teeth. इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. The nature and mode of arrangement of teeth is called dentition. पूछा जाता है ये क्वेश्चन. Nature and mode of the arrangement of the teeth, it is called dentition. Human dentition जो है वो किस तरह का है, तो बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे. तो ह्यूमन डेंटिशन जो है इट इज कॉल्ड हेट्रोडोंट, थेकोडोंट एंड डायफायोडोंट. हेट्रोडोंट, थेकोडोंट एंड डायफायोडोंट. ओके, दैट इज द टाइप ऑफ द ह्यूमन डेंटिशन. इसके बारे में भी हम देखते हैं. हेट्रोडोंट क्या है, थेकोडोंट क्या है, डायफायोडोंट क्या है. Heterodont type of the dentition, it means different kinds of the teeth are present. तो यहाँ पे ह्यूमन में हेट्रोडोंट डेंटिशन, इसका मतलब हमारे सभी जो दांत है वो एक तरह के नहीं है, सभी अलग अलग तरह के. कौन कौन से वेराइटीज है यहाँ पे, तो इंसीजर्स दैट इज आइडेंटिफाइड एज आई, कैनाइंस दैट इज सी, प्रीमोलर्स जिसको हम शॉर्ट में आइडेंटिफाई करते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में पीएम, और मोलर्स दोज आर नोन एज एम. इन सीजर्स का काम क्या है, तो फॉर कटिंग द फूड, कट करने के लिए इन सीजर्स काम आते हैं. ओके, कैनाइंस किसके लिए काम आते हैं, तो कैनाइंस काम आते हैं फॉर टीयरिंग. ओके, प्री मोलर्स का जो काम है दैट इज फॉर मास्टिकेशन, और मोलर्स का भी काम जो है दैट इज फॉर मास्टिकेशन. ओके, तो यहाँ पे ये गलती है, दैट इज इट शुड बी मोलर, इट शुड बी इंसीजर्स. देन ये साइड पे जो है दोज आर द कैनाइंस, प्रीमोलर्स, और लास्ट वाले जो हैं दोज आर नोन एज मोलर्स. दीज आर द इंसीजर्स. फिर यहाँ पे जो है दोज आर द कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स, एंड लास्ट जो है दोज आर द मोलर्स. ओके, ये बताया गया है मोलर का, लेकिन ये मोलर नहीं है, इट इज इंसीजर्स. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड cheek teeth which have cusps. ओके, तो यहाँ पे आपको कस्पिंग भी देखने मिलता है इसके ऊपर, जो इन सीजर्स और कैनाइंस में हमें देखने नहीं मिलता है. ओके, तो ये हेट्रोडोंट टाइप ऑफ द डेंटिशन है जिसमें एक्चुअली डिफरेंट तरह के टीथ हमारे पास हैं. फाइन. ह्यूमन डेंटिशन में एक दूसरा वेराइटी दैट इज कॉल्ड थेकोडोंट डेंटिशन. इट मीन्स टीथ आर प्लेस्ड इन द जो सॉकेट्स. तो टीथ ऐसा ही नहीं है, सॉकेट्स में फिट किए गए हैं. ओके, तो ये सारे सॉकेट्स हैं और उसका शेप भी आप देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द टीथ. देखिए उस फिगर में आगे गलती थी, मैंने तब भी आपको क्लियर किया था कि आगे फ्रंट के जो टीथ हमें दिखते हैं दोज आर द इंसीजर्स, साइड में जो है दोज आर द कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, और उसके नंबर भी आप देखिए
कुल मिला के हम बोलते हैं 32। ओके 32 का अरेंजमेंट कैसे, अपर जो एंड लोअर जो दोनों में 16 है, और उसको भी अब देखते हैं तो 16 का भी बाइफर्केशन है, दैट इज हाफ 8 and 8। तो यहाँ पे इन सीजर्स जो है पहले दो, फर्स्ट एंड सेकंड इज नोन एज इन सीजर, देन थर्ड जो है दैट इज कैनाइन, फोर्थ एंड फिफ्थ इज अ प्रीमोलर, 6, 7 and 8 इज मोलर्स। ओके, तो ऐसा सेम अरेंजमेंट यहाँ पे भी आपको इस डायरेक्शन में भी देखने मिलने वाला है। नाउ diaphyodont type of the dentition, it means teeth appear twice in lifetime, they are milk teeth and permanent teeth। तो यहाँ पे ह्यूमन डेंटिशन में डायफायोडोंट का मतलब है लाइफ टाइम में 2 बार आपको टिथ मिलते हैं। ओके, तो एक होते हैं मिल्क टिथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टिथ। जो मिल्क टिथ है दैट इज कॉल्ड डेसिडुअल टिथ। तो उनके टोटल नंबर कितने होते हैं 20, and they develops at 6 to 7, they develop in at 6-7 months of the birth। okay, after the birth 6th या 7th month में वो develop होते हैं, they are replaced by the permanent teeth at the age of 6 and 7, 6 to 7 years। okay, permanent teeth जो है उसके नंबर होते हैं 32। okay, तो मिल्क टीथ के नंबर है 20, एट द एज ऑफ द 6-7 वो शुरू होते हैं, और कब तक है दैट इज अप टू 6 to 7 ईयर ऑफ द एज, और उसके बाद उसके साथ साथ आना शुरू होते हैं परमानेंट टिथ, जिसके टोटल नंबर होते हैं 32। The last 4 molars appear only at the age of 18। last 4 molars जो लगते हैं वो at the age of 18 आते हैं, so they are called wisdom teeth। okay, the hard chewing surface of teeth is made up of enamel। okay, तो जो surface है teeth का it is known as enamel। okay, उसको बोला जाता है enamel। hard chewing surface, ऊपर का जो surface है that is enamel। okay, तो ये पूरा आपको दिखाया है अपर सेट एंड लोअर सेट में। ओके, दोनों तरह का डेंटिशन आपको दिखाया है। फाइन, ये जो है दैट इज परमानेंट का है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज ऑफ द मिल्क टिथ। ये मिल्क टिथ का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप देख सकते हैं। कैनाइन के नंबर वही रहते हैं। ओके, इन सीजर्स भी वही है, लेकिन जो मोलर्स हैं और प्री मोलर्स वो नंबर सिर्फ यहाँ पे कम ज्यादा हो रहे हैं दोनों के लिए। अदरवाइज कैनाइन्स और इंसीजर्स तो पहले से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। जो डिफरेंस नंबर का आ रहा है 12 का, दैट इज बिकॉज ऑफ द नंबर इन चेंज इन द नंबर ऑफ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। अब फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ये भी पूछा जाता है। द फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन्स the kinds and number of teeth, that is known as dental formula। human dental formula of permanent teeth is incisors 2/2, canine 1/1, premolars 2/2 and molars 3/3 into 2 is equal to 32। ये फॉर्मूला जो है that is of the permanent teeth। okay, तो कुल मिला के 32, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 1 2 3। एक साइड के लिए आप बोल सकते हैं 2 1 2 3, मतलब 2 + 1 is equal to 3 + 2 5 and then 3 8। और ऐसा दूसरा पार्ट भी है, दूसरा हाफ भी है लोअर यहाँ पर जो में, तो 8 + 8 16, और ऐसा ही दूसरा जो भी है आपके पास दैट इज ऑफ 16 सेम। तो ऐसे हो जाएगा 32। और अगर आपको पूछते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मिल्क डेंटिशन, ओके, उसमें क्या होता है, तो इंसीजर्स 2/2, कैनाइन 1/1। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि परमानेंट और मिल्क डेंटिशन में इंसीजर्स और कैनाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। प्री मोलर देखिए 0 है मिल्क डेंटिशन में, और मोलर भी जो है वो भी आप देख सकते हैं 3/3 की जगह पे 2/2 है। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ पे रहता है, multiply by 2, so it is actually forming the total 20 teeth। okay, तो ये डेंटिशन का फॉर्मूला है 2102, ये मिल्क डेंटिशन में, और परमानेंट में 2123 ये फॉर्मूला है आपका परमानेंट के लिए। ओके, आफ्टर माउथ बक्कल कैविटी के बाद जो है दैट इज फेरेनिक्स। ओके, उसको बोला जाता है फेरेनिक्स। ये पूरा रीजन जो आपको दिखा है दैट इज फेरेनिक्स।
इट इज कॉमन पसाज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉस्ट्रिल में से जो एयर भी आ रही है उसका, एज वेल एज माउथ जो है उसमें से भी जो फूड जो आ रहा है उसके लिए ये कॉमन पसाज है। ओके यहाँ पे दैट इज फेरिनिक्स। ओके ये पूरा रीजन जो है दैट इज फेरिनिक्स। व्हेन फूड मटेरियल्स पास थ्रू द फेरिनिक्स, द कार्टिलेजिनियस एपिग्लोटिस closes the glottis, that is called opening of the larynx, and prevents the entry of food into trachea. तो जब भी फूड मटेरियल पास होता है फ्रॉम द फेरिनिक्स तो वहां पे कार्टिलेजिनस एपिग्लोटिस करके एक वहां पे है वाल्व जैसा स्ट्रक्चर, वो क्लोज करता है ग्लोटिस को, विच इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिनिक्स, और उसकी वजह से आपका जो फूड है वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा। यू कैन सी ये जो एपिग्लोटिस है ना, ये वाला एपिग्लोटिस क्या करता है, क्लोज कर देता है ग्लोटिस को। एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को क्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ द लैरिनिक्स। ये आपका वॉइस बॉक्स है दैट इज लैरिनिक्स। ओके उसको ये क्लोज करता है एपिग्लोटिस, और उसकी वजह से फूड मटेरियल जो आपने इंजेस्ट किया है वो डायरेक्ट इस तरफ जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर, ये सीधा यहाँ से नीचे आएगा, इस तरफ नहीं मूव करेगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा चैनल है, तो वहां पे ये ट्रैकिया हमें दिख रहा है, वहां पे तो नहीं जाने वाला है, ये फिक्स है। ओके तो ये प्रोविजन आपको दिया गया है, भले ही यहाँ पे कॉमन पसाज बन रहा है, लेकिन बाद में क्या है, तो बाद में वो वहां पे टिकना चाहिए। ओके मतलब वो कॉमन होना चाहिए यहाँ तक, लेकिन बाद में सेपरेशन है, ऑसोफेगस के थ्रू उसको आगे भेजना है, इसीलिए यहाँ पे एक शटर दिया हुआ है दैट इज एपिग्लोटिस। ओके और वो ग्लोटिस को क्लोज कर रहा है सो दैट फूड इज नॉट इंजेस्टेड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकिया में नहीं जाएगा। ओके now after this it is osophagus. okay pharynx के बाद जो है that is osophagus, it is the muscular tube of 30 centimeter length that conducts food into stomach. okay तो ये मस्कुलर ट्यूब है पूरा कि जो फूड को स्टमक तक लेके जाता है। posterior part of the osophagus has gastroesophageal sphincter. sphincter एक तरह का valve है which is a circular muscle. It controls the opening of the esophagus into stomach. okay तो मस्कुलर ट्यूब है ये पूरा आपका जो ओसोफेगस है, इट इज द मस्कुलर ट्यूब, और वो क्या करता है, इट कंडक्ट्स फूड इनटू द स्टमक। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव में दिख रहा है जो। ओके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस हैज गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। ओके ये आप देख रहे हैं लेस जो लिखा है लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर, दैट इज गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। ये देखिए यहाँ पे ये मस्कुलर वाल्व जैसा सिस्टम है। ओके तो ये क्लोज ओपन होके देखिए, ये ओपन हुआ और फूड गया अंदर, और ये वापस क्लोज हो गया, तो इट इज एक्टिंग एज अ वाल्व, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डोर के जैसे काम करता है, दैट इज गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। ओके और इस हिसाब से ये हेल्प करता है। ओके तो पूरा यहाँ पे हमें ये दिखाने का ट्राई किया गया लाइव में कि फूड कैसे मूवमेंट करता है। ओके नाउ स्टमक। तो स्टमक में भी फूड की मूवमेंट क्या है, तो स्टमक इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। आप देखिए बाकी सारे ऑर्गन की जगह स्टमक का कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, और स्टमक जो है वो जे शेप वाला स्ट्रक्चर हमें क्लियरली दिख रहा है। इट इज हैविंग 3 पार्ट्स। जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड फंडस विच इज एंटेरियर पार्ट, फिर मिडल पार्ट है दैट इज कार्डियक स्टमक। ओके ये पूरा एरिया, और लोअर पार्ट दैट इज पाइलोरिक स्टमक, दैट इज एंट्रम। यू कैन सी अगेन, आप इसको देखिए हाईलाइट होता हुआ यहाँ पे फंडस है दिस वन, ये फंडस, देन द मिडल पार्ट विच इज कार्डियक स्टमक, ये पूरा जो कार्डियक स्टमक है, और लोअर पार्ट जो दैट इज पोस्टेरियर, ओके विच इज पाइलोरिक स्टमक, दैट इज एंट्रम। ओके इसको हम एंट्रम कहते हैं, पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद जो शुरू होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड पाइलोरस।
गार्डेड बाय द पायलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे भी आप देखिए मस्कुलाइन ओपनिंग है। ओके, तो इसको बोला जाता है पायलोरस, इट इज पायलोरिक स्फिंक्टर। इनर वॉल ऑफ द स्टमक बियर्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स दैट इज कॉल्ड रग्स, ये आप देख सकते हैं रग्स, पूरा रग दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स हमें दिख रहे हैं। ओके, और ये काम आते हैं फॉर डाइजेशन, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फूड इन द स्टमक। ओके, और पायलोरिक स्टमक स्फिंक्टर का काम क्या है, तो वो फूड का पसाज कंट्रोल करेगा फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए एंट्री के जगह पे भी वहां पे स्फिंक्टर है, दैट इज लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर, जिसको गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर बोला जाता है। फिर है पायलोरिक स्फिंक्टर, ओके, वो भी है, तो उसको वैसे कंट्रोल किया जाता है, राइट। और रग्स दिए गए हैं तो इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फूड। ओके, पायलोरस जो पूरा एरिया है, ओके, इट इज हैविंग पायलोरिक कैनाल एंड पायलोरिक एंट्रम। ओके, तो लास्ट पार्ट जो है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड पायलोरिक एंट्रम। ओके, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट, ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स बहुत बार, स्मॉल मतलब ऐसा मान के चलते सबसे स्मॉल है, ऐसा नहीं है, साइज के हिसाब से ये लॉन्ग है। ओके, 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, तो उसको स्मॉल इसीलिए बोला गया क्योंकि उसका डायमीटर जो है उसका इट इज स्मॉल। सो 2.5 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। इट इज हैविंग 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, ओके, दिस वन इज अ ड्यूडेनम। देखिए यहाँ से ये स्टमक है और स्टमक के ठीक नीचे ये वाला पार्ट यू कैन सी, जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग हुआ उसके बाद पहला पार्ट है ड्यूटेनम विच इज अ सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा सी शेप का पार्ट है ड्यूडेनम। फिर जेजुनम विच इज द मिडल पार्ट, ये पूरा फोल्डिंग वाला जो मेन एरिया आपको दिख रहा है 7 मीटर का मेजर एरिया, दैट इज जेजुनम। और द लास्ट पार्ट जो है दैट इज इलियम, दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, टर्मिनल पार्ट, और उसके बाद जो शुरू होता है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम जो है इट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द स्टमक, जेजुनम इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो इलियम है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन which is going to connect with large intestine. Fine. So स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें फिंगर लाइक वेले हमें देखने मिलते हैं ऑन द म्यूकोजल सरफेस, ये म्यूकोजल सरफेस है अंदर का स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस म्यूकोजा सरफेस हमें दिखते हैं। ईच विलस हैज अ ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल लेयर प्रोवाइडेड विथ माइक्रोविले, ये माइक्रोविले है, ये पूरा आपको दिखा है माइक्रोविले वाला पूरा का पूरा प्रोजेक्शन, ये हमें दिख रहा है, ओरिजिनल इमेज है ये ओरिजिनल सेक्शन लिया हुआ है और ये इसका फोटोग्राफिक व्यू है। ओके, तो माइक्रोविले वाला पूरा एपिथेलियम लाइनिंग हमें यहाँ पे देखने मिलता है, चैप्टर नंबर 7 में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। एपिथेलियम में ऐसे एपिथेलियम के जहाँ पे माइक्रोविले है, तो यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम है और उसके पास माइक्रोविले भी है। विलस कंसिस्ट ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क एंड स्मॉल लिम्फ वेसल्स व्हिच इज नोन एज लैक्टियल। ओके, तो लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं, और ये लिम्फ वेसल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये येलो वाला पूरा जो स्टेम हमें दिख रहा है दैट इज नोन एज लैक्टियल। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पे कांटेक्ट में रहते हैं, द रीजन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका काम है टू फाइट विद द फॉरेन एंटीजेंस, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। होता ये है कुछ फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न जो डिजीज हैं उनका रूट तो यही है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, तो वहां पे उनके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भी आपको लिम्फेटिक सिस्टम कांटेक्ट में चाहिए, तो इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे कांटेक्ट में बन रहा है। ओके, तो विलस जो इट इज फॉर्मिंग द ब्रश बॉर्डर सरफेस, तो दो फायदे होते हैं इससे, एक तो फूड की मूवमेंट अच्छे से होती है और दूसरा जो है सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। रीजन इज सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे फूड का जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके आगे तक तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन ही था, लेकिन अभी डाइजेशन करने के बाद उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मेजोरिटी ऑफ द फूड मटेरियल इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड। Now the large intestine and the last part of the system, that is anus.
तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, इट हैज 3 पार्ट्स, दैट इज सीजम, कॉलम एंड रेक्टम. यू कैन सी सीजम, देन कॉलन, ये पूरा का पूरा कॉलन, और लास्ट पार्ट जो है दैट इज रेक्टम, ये वाला रेक्टम. सीजम क्या है? इट इज वेल डेवलप्ड इन द हर्बीवर्स बट वेरी स्मॉल इन मैन, मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो हर्बीवर्स में सीजम जो है वो अच्छे से डेवलप्ड है, लेकिन ह्यूमन में ये स्मॉल डेवलप्ड है. Arising from the cesium is a finger-like vestigial organ that is vermiform, that is vermiform appendix. Okay, तो cesium जो है, okay, वहां पे एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन देखने मिल रहा है. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि जो अब हमारे काम का नहीं रहा है, ऐसा एक ऑर्गन वहां पे, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पे है. ये वेल डेवलप्ड है बाकी के हर्बीवर्स में, लेकिन ह्यूमन में ये वेल डेवलप्ड नहीं है. ह्यूमन में ये वेल डेवलप्ड नहीं है अपेंडिक्स. ओके फाइन. कॉलन जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ असेंडिंग कॉलन. 3 पार्ट में डिवाइडेड है कॉलन. ओके, एक है असेंडिंग कॉलन, फिर दूसरा जो है दैट इज ट्रांसवर्स कॉलन, और तीसरा जो है दैट इज डिसेंडिंग कॉलन. यहाँ पे फूड ऊपर जा रहा है इसीलिए असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, और नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कॉलन. ऐसे 3 पार्ट में कॉलन डिवाइडेड है. कॉलन में और कुछ नहीं है, जो फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हो चुका है अभी, उसका जो वेस्ट है वो अब मूव कर रहा है. बहुत कम चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब होने वाली है, बहुत कम न्यूट्रिशन यहाँ पे एब्जॉर्ब होने वाला है. जो एब्जॉर्ब होने वाला था वो 7 मीटर लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है. अभी यहाँ पे वेस्ट का मूवमेंट ज्यादातर होता है. ओके, दूसरा यहाँ पे सीजम जो है, वहां पे हमारे लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं वहां पे कॉलोनाइज करते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं. यहाँ पे सीजम में ही वो सर्वाइव करते हैं. ओके, नाउ द रेक्टम विच इज द पेल्विक कॉलन. पेल्विक कॉलन जो है दिस वन, डिसेंडिंग कॉलम के बाद जो पेल्विक कॉलन है द लास्ट वन, ओके, वो उसके साथ कनेक्ट करता है रेक्टम के साथ, एंड अल्टीमेटली रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस. एनस इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर. तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर वॉलंटरी मसल वाला एक प्रोविजन दिया हुआ है, ओके, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एनस, ओके, टू डिस्कार्ड द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, तो ऐसे पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का भी है. तो वो एक्चुअली वैसे तो 3 पार्ट में हम बनाते हैं, लेकिन पेल्विक कॉलन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड पेल्विक कॉलन. ओके, in some herbivores large intestine consists of cellulose digesting bacteria. कुछ में ऐसे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो हर्बीवर्स हैं, ओके, उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया है वैसे. ओके, आप यहाँ पे एक सेक्शन भी देख रहे हैं, ह्यूमन गट एलिमेंट्री कैनाल का पूरा एक सेक्शन दिखाया गया है. टीएस में आपको 4 लेयर दिखाए गए हैं. सबसे अंदर वाला जो है दैट इज म्यूकोजा, ये वाला वेवी सरफेस जो दिख रहा है. फिर उसका काम क्या है? इट इज द इनर मोस्ट मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर. इट कंटेन्स सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स. ओके, तो म्यूकोजा के पास क्या है? तो म्यूकोजा के पास जो है सिक्रेटरी सेल्स हैं और एब्जॉर्प्टिव सरफेस है. यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, एज वेल एज जहाँ पे सिक्रीशंस की जरूरत है वो सिक्रेट करने का काम करेगा. दूसरा लेयर ठीक उसके बाद में जो दिखाई देता है दैट इज सब म्यूकोजा. ओके, दूसरा लेयर जो है दैट इज सब म्यूकोजा. तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है जस्ट आउटसाइड द म्यूकोजा. ये पिंक वाला पूरा जो रिंग है दैट इज सब म्यूकोजा. इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड पहुंचाने का काम, और नर्व्स मतलब इम्पल्सेस पहुंचाने का काम भी ये करता है. सब म्यूकोजा लेयर्स के थ्रू ये आता है. देन मस्कुलरिस लेयर. ओके, मस्कुलरिस, तो इट इज आउटर टू द सब म्यूकोजा.
ओके, आउटर टू द सब म्यूकोजा स्मूथ मसल लेयर का पूरा बना हुआ है, ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। इनर जो है पूरा दैट इज सर्कुलर और आउटर जो है अरेंजमेंट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो अंदर का जो है दैट इज सर्कुलर और बाहर के जो मसल्स दिख रहे हैं दोज आर द लॉन्गिट्यूडनल। और सबसे बाहर का जो लेयर है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, जिसको बोला जाता है सेरोजा, इट इज फाइब्रस लेयर। ये सबके बाहर जो है दैट इज सेरोजा विच इज द फाइब्रस लेयर, ये फाइबर्स का बना हुआ है। मस्कुलरिस में मैंने अभी आपको बताया कि दो है, सर्कुलर अंदर का रिंग जो है वो सर्कुलर मसल्स का है और बाहर का मसल जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा क्यों दिया गया है? द रीजन इज यहाँ पे दोनों तरह के मसल्स होने चाहिए, क्योंकि जब हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं उसका जो बॉलस बन रहा है, जो फूड जा रहा है अंदर, बॉलस बोला जाता है उसको। माउथ में जब हम चबाते हैं फूड को तो उसमें से जो बनता है स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है बोलस। और ये बोलस जब अंदर जा रहा है, ये आपको देखिए टीएस पूरा आपको दिखाया गया है, तो उसके साइज के हिसाब से वो आपके जो मसल्स हैं वो एक्सटेंड होने चाहिए। तो उसके लिए आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी चाहिए और दूसरा आपको सर्कुलर मसल्स भी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम अगर यहाँ पे देखें, माउथ और सलाइवरी ग्लैंड, फिर ओसोफेगस है, फिर वहां से आता है स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम और एनस। ये पूरा लाइन डायग्राम, आप सिंप्लीफाइड वर्जन इसको बोल सकते हैं। और उसको हेल्प कर रहे हैं सपोर्टिव कुछ ग्लैंड्स। तो देखिए यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, फिर गॉल ब्लेडर, लीवर, पेनक्रियास। जो ग्रीन पार्ट्स दिखाए गए हैं दोज आर द सपोर्टिव एसेसरी ग्लैंड्स, और बाकी जो पूरा व्हाइट पार्ट है इट इज एक्चुअली द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पूरा का पूरा आपको एट अ ग्लांस यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इस तरह से पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ होता है। ओके, so dear students, up to this we have studied about entire alimentary canal. Okay, and in the next session we are going to learn about digestive glands. Okay, क्योंकि digestive gland के अलावा हम food digest नहीं कर पाएंगे। The reason is the secretions of the digestive glands. Okay, तो आज हमने alimentary canal के बारे में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने का ट्राई किया हुआ है। ओके, पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, वैसे इनका रोल बहुत सिंप्लीफाइड है। ओके, जो भी काम ज्यादातर है दैट इज ऑफ द ग्लैंड्स। ओके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, what is the biochemistry of the food digestion, that is also important. Anatomically digestive system is very simple compared to the other systems. Okay, इसीलिए आपको लगता होगा कि पूरा digestive system अभी शुरू किया, अभी पूरा एलिमेंट्री कैनाल भी हमने स्टडी कर लिया, तो उसमें कुछ ज्यादा स्पेशलिटी नहीं है। हाँ, अभी ग्लैंड्स जब आएंगे तो ग्लैंड्स के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, मर्ज करेंगे दोनों सिस्टम को, ग्लैंड्स को और अपना जो गट सिस्टम है उसको जब हम मर्ज करेंगे तब एक पूरा कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पिक्चराइज होने वाला है। ओके, सो अप टू दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट नाउ about alimentary canal we have studied. Okay, tomorrow we will be discussing about entire gland system of the digestive system.